Good morning, everyone. Welcome to AJ classes. As you might have seen from the screen, it is showing air, venue, and president. So, this is what I wanted to share with you a long time ago. But since we are doing modern history question answers, I was not able to come up with this beautiful topic of knowing the INC presidents, in which year, who was the president, and where did the venue took place. Okay, so first of all, 1885, INC was founded in 1885 during the viceroyship of Dufferin. Lord Dufferin was the British viceroy at the time of formation. You can write down in your copies or any notebooks. This is an extra information apart from the what board is offering you the knowledge. So you can write that in 1885 A.O. Hume, he is known as the father of INC. Okay, he founded INC. अलेक्जेंडर ओ से भी कुछ नाम है और ह्यूम. ठीक है, ये फाउंड की 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये फर्स्ट जो मीटिंग था, ये फर्स्ट मीटिंग होने वाला था आपका पुणे में. फर्स्ट मीटिंग होने वाला था पुणे में, बट ड्यू टू प्लेग, एक डिजीज़ है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसी तरीके से एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्ट्रस डिजीज़ था प्लेग, जो कि पुणे में फैला हुआ था. तो इसके वजह से डिसीजन चेंज करके वेन्यू को चेंज किया गया था और वो बॉम्बे गोकुलदास कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था. ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द टाइम WBCS और एनी अदर PCS एग्जाम्स दे आस्क हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC. The answer is Vomesh Chandra Banerjee. Some extra information: 72 delegates attended. Okay, 72 persons were attending that session, 1885 first session. And another information: first Bengali president Vomesh Chandra Banerjee. Okay. Next, you can see the next year, 1886. I will be providing not all, as you can see, 1886, 1887, 1888, then comes 1896. I will be providing you the most important INC years. Okay, what event took place in different years and who was the president at that time when an remarkable event took place, like this Vande Mataram was first time sung by Rabindranath Tagore in the year 1896. Okay, सो ऐसे ही होगा. ठीक है, ये नहीं कि मैं लाइन बाय लाइन, तो बहुत बड़ा चार्ट है, वो हर के पास मौजूद है. ठीक है, खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. 1886 कैलकाटा, दादा भाई नौरोजी, 434 delegates attended. Another important question arises from here also. And then first Parsi president दादा भाई नौरोजी. 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी. Another important question, first Muslim president. This question always comes, who was the first Muslim president of INC? So Badruddin Tayyib ji is the answer, and he was elected in the year 1887. Madras was the place. Then moving on to the next table, 1888 Allahabad. The event took place in Allahabad. George Yule was the president, and you can see first Irish president. Sometimes the question is asked in a different way, who was the first English president? English president भी यही है, और Irish president मतलब आयरलैंड के रहने वाले जॉर्ज यूल हैं. ठीक है, 1896 कैलकाटा. Very important place was Calcutta and Bengal, because Bengal and Calcutta. So because most of the revolutionary acts was acting from here only. Okay, so Rahmatullah Sayani was the president of INC at the time of 1896, and at that time first time Vande Mataram was sung by Rabindranath Tagore. This question always arises as, when did the Vande Mataram sung, in which session? 1896 the answer. By whom? Rabindranath Tagore. Who was the president at that time? रहमतुल्लाह सयानी. तो नेक्स्ट जो एयर आएगा
ये आपका 1906 में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसमें भी कुछ इवेंट आया है, वो मैं शेयर करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि स्टार्टिंग में आईएनसी के बारे में बोलना चाहिए था, जो मैं पहले बोला कि फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम, ही वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, ओके। वॉइसरॉय डफरिन थे, ठीक है। तो डफरिन ने एक बात बोला था कि कांग्रेस, ये जो आईएनसी है, ये एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी मतलब कि बहुत ही छोटा। माइनॉरिटी माने ही छोटा होता है कि भाई कम आदमी या कम पॉपुलेशन, तो उसको माइनर बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपिक, जो कि साइंस स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे कि माइक्रोस्कोप से देखना मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बहुत ही छोटा, ऐसा छोटा कि आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखना पड़ रहा है, नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ये बोले थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन, जो उस वक्त के वाइसरॉय थे, ठीक है। एक और कमेंट जो कि काफ़ी फेमस हुआ था वो ये था कि आईएनसी इज लाइक प्लेइंग विद बबल। आईएनसी इज लाइक प्लेइंग विद बबल। तो ये प्लेइंग विद बबल मतलब बुलबुला के साथ खेलना, ये बोले थे पाल। आपको याद होगा इससे पहले वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस करके बताया कि जो 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल, लाल और पाल, तो ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था आईएनसी इज लाइक प्लेइंग विद बबल, ओके। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। अब जो हम लोग 1906 वाला टेबल देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये वे और ये वीडियो जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ कि आईएनसी का भी एक होना चाहिए, तो प्लीज़ एक लाइक बटन में टिप दीजिएगा, लाइक, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। अब आप देख सकते हैं कि बोर्ड में 1906 के बारे में आ गया है। 1906 का इवेंट कलकत्ता में हुआ था और उनके प्रेसिडेंट हुए थे दादा भाई नारोजी। तो इसमें स्वराज डिमांड किया गया था। स्वराज माने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पहली बार डिमांड जो है 1906 में हुआ था, कलकत्ता में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी थे। नेक्स्ट 1907 काफ़ी फेमस, सूरत, इसमें कांग्रेस का स्प्लिट भी हुआ था, जो कि ये नाम काफ़ी फेमस है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, क्वेश्चन में हमेशा आता है, तो आंसर होगा 1907 में। तो इस वक्त के प्रेसिडेंट थे राष्ट्र बिहारी घोष, और इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग 2 भाग बन गया था, जिसको हम लोग गरम दल और नरम दल से भी जानते हैं। नेक्स्ट आईएनसी स्प्लिट हो गया था। मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बना है, 1906 में मुस्लिम लीग बना ही था और आईएनसी से पहले अटैच में था। लेकिन ये जो सूरत का जो ये सेशन हुआ, इसमें ये दोनों अलग अलग हो गए, थोड़ा भेदभाव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1911, 7 के बाद हम लोग 4 और ऐड कर दिया। इसमें उतना कोई प्रोमिनेंट कोई इवेंट नहीं हुआ, तो उसको मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो प्रोमिनेंट इवेंट है वही मेंशन रहेगा। कलकत्ता, बिशान नारायण धर थे उस वक्त प्रेसिडेंट 1911 में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, जैसे कि वंदे मातरम का 1896 वाला ईयर काफ़ी रिपीट होता है, वैसे ये वाला ईयर भी 1911 बार बार रिपीट होता है, क्योंकि इसमें जन गण मन फर्स्ट टाइम संग हुआ था, पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए, ठीक है। 1916 अनदर इम्पॉर्टेंट ईयर, लखनऊ में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट का नाम बार बार आता है, क्यों? क्योंकि इसमें लखनऊ पैक्ट 1916 का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो है रीयूनाइट हो गया था मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1916, लखनऊ पैक्ट 1916, व्हाट इवेंट टुक प्लेस, कांग्रेस वाज रीयूनाइटेड। 1917, moving on to the next, Calcutta session. Why important? Annie Besant, the first woman president, as discussed earlier, he was the first woman president. But when question will arise that first Indian woman president, तब आप लोग लिखेंगे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, she was the first Indian president, 1925 कानपुर। Okay, then the next year which will be coming is 1923, and you will know why the year is important. अब आपके स्क्रीन पे जो नेक्स्ट ईयर है
वो आप देख सक रहे हैं 1923 दिल्ली में हुआ ये इवेंट, और इनके प्रेसिडेंट रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, उनका एज 35 ईयर्स था। ठीक है। और अगर हम लोग प्रेसिडेंट का रूल भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि एज ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ठीक है, हो सकता है यहीं से निकाला गया हो, खैर वो बात की बात है। 1924 पहले भी डिस्कस हुआ, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। गांधी जी, जैसे होता है ना भाई, नाम ही काफ़ी है, तो बस गांधी जी थे प्रेसिडेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन। ठीक है। 1928 में कलकत्ता में हुआ था। ये इनके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस वक्त ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था? तो हम लोग लिख सकते हैं 1928। आईएनसी के थ्रू अगर आएगा तो उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू आंसर होगा। ठीक है। और फिर वो सेशन हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता होगा आंसर। तो इसमें आपका काफ़ी क्वेश्चन जो आईएनसी से रिलेटेड होता है कि कौन प्रेसिडेंट था, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब कवर अप हो जा रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। 1929 काफ़ी फेमस लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं ना यहाँ पर, तो लाहौर में हुआ था और उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उस वक्त पूर्णा स्वराज डिमांड किया गया था। स्वराज मतलब होता था इंडिपेंडेंस, पूर्णा मतलब हुआ पूरा, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड हुआ था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, भाई अब हम लोग को पूरा आज़ादी चाहिए। ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड, लाहौर रेजोल्यूशन भी बोलते हैं इसको। इस तरह से भी आता है कि लाहौर रेजोल्यूशन में कौन प्रेसिडेंट थे, फिर लाहौर रेजोल्यूशन कब हुआ? 1929 आंसर हुआ। ठीक है। मूविंग ऑन, 1931 अनदर फेमस एंड अ वेरी, मतलब कि बार बार ये क्वेश्चन आता है कि 1931 में जो सेशन वो कहाँ हुआ, या डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये कौन से सेशन में हुआ, कहाँ हुआ, या उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन हुआ था। FR मतलब यहाँ पर है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। 1933 अनदर इम्पॉर्टेंट, लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट लाइक दीज वन 1929 एंड 31, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनके जो प्रेसिडेंट हैं नीली सेनगुप्ता, ये फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट हुए। ठीक है। 1933 में कलकत्ता में हुआ सेशन, नीली सेनगुप्ता वॉज द फर्स्ट बंगाली प्रेसिडेंट। जब हमारा नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो है 1936, वो भी हम लोग देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है। अब आपके स्क्रीन पे 1936 दिखाई दे रहा होगा। तो 1936 अनदर इम्पॉर्टेंट, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला सेशन ऐसा हुआ जो कि एक गांव में हुआ, विलेज में हुआ। ठीक है। और उस वक्त प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू का सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बनना हुआ। ठीक है। ठीक है। 1938 हरिपुरा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए जो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट बनते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है। नॉमिनेशन होता था कि ठीक है ये काफ़ी एफर्ट दिखाए, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग निकाला, जिसकी वजह से उनको बोला गया कि हाँ इन्होंने काफ़ी काम किया, तो 1917 में इनको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। लेकिन अब जो है सिलसिला ख़त्म हो गया। अब 1938 जो है इस वक्त से इलेक्शन स्टार्ट हो गया, तो वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। और नेक्स्ट जो है, एक मिनट थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है शायद, इलेक्शन जो है यहाँ होता है 1939, जिसमें गांधी जी एक अपने नॉमिनेशन को भेजते हैं जिनका नाम है पत्तवी सितरमैया। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपको फिर बाद में समझना पड़ेगा। ये नाम को आप याद कर लीजिए, पत्तवी सितरमैया। हम डिस्कस करेंगे कि ये नाम कब आता है वापस। खैर 1939 में जो त्रिपुरी सेशन मध्य प्रदेश में हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस हुए और वो इस वक्त शायद इलेक्टेड हुए थे। ये मेरा थोड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं खुद भी रिवाइज करता हूँ तो ये थोड़ा रिवीजन में से मिस हो गया।
तो माफ़ करिएगा, जो भी है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगर आता है तो ये यही होता है। और ये क्वेश्चन अभी तक तो मेरे ख्याल से नहीं गुजरा है कि वो इलेक्शन कब हुआ था, 1938 कि 39, ठीक है। खैर, गांधी जी नॉमिनेट किए थे पत्तवी सितरामैया को आईएनसी प्रेसिडेंट के लिए। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड हुए थे। तो फिर ये क्या हुआ, अनबन हो गया गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अरे मतलब अच्छा खासा रिलेशन था इनके दोनों के बीच में, ठीक है। फादर ऑफ नेशन का जो लक़ब है, ये टाइटल है, वो सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को दिया था और गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी वाला टाइटल दिया था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था। तो ये रिलेशन ब्रेकअप हो गया तो क्या हुआ कि वो भी रिज़ाइन कर गए। ये मतलब ही रिज़ाइन बट द पोस्ट बिकेम एम्प्टी, वैकेंट हो गया पोस्ट। तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एंट्री होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ आईएनसी के प्रेसिडेंट बनेंगे जब वो सीट वैकेंट हो जाता है, ठीक है। ना सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, वो अपना रिज़ाइन कर देते हैं। तो उस रिजिग्नेशन के बाद उस पोस्ट में राजेंद्र प्रसाद आते हैं, ठीक है। 1940 से 46 काफ़ी बड़ा समय है। रामगढ़ में हुआ था 1940 में, कर्नाटक में, जहाँ पर प्रेसिडेंट बने मौलाना आज़ाद। और इस वक्त वो लॉन्गेस्ट टेन्योर फॉलो किए इसलिए क्योंकि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, 1945 1946 में, ये सब टाइम मैंने क्या वेवेल प्लान, बहुत इवेंट्स हो रहा था 1940 से 46 के बीच में। और काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं जेल में थे, तो इसलिए इवेंट कुछ हुआ ही नहीं ज़्यादा। तो 1940 से डायरेक्ट 46 तक का ये मौलाना आज़ाद ही प्रेसिडेंट रहे और इसी को इसलिए लॉन्गेस्ट टेन्योर भी बोलते हैं, ठीक है। 1947 काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हु वाज द आईएनसी प्रेसिडेंट, तो जेबी कृपलानी आंसर होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हुआ था और ये इवेंट हुआ था मीरठ यूपी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है कि जेबी कृपलानी कब बने थे या कहाँ पर बने थे, ठीक है। 1948 में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इस बोर्ड से रिलेटेड मैं जो एक वर्ड बोला आपको कि पत्तवी सितरामैया को याद करिए, तो ये पत्तवी सितरामैया उठ के यहाँ आएंगे। पत्तवी सितरामैया, सितरामैया, ठीक है, जो कि नॉमिनेट किया गया था गांधी जी के तरफ से। वो जो बच्चा है या वो जो बंदा है वो उठ के 1948 में वापस आता है और आईएनसी का प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। तो इतना ही रहा आईएनसी के बारे में। होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन कि आईएनसी के जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो मैं डिस्कस कर पाया। तो ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।